ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹਦੇ 5.5 ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 6 ਈਚ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ CICs ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੱਕ CICs ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਏਰੀ ਇਮਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ CIC ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਲਭਾਊ ਜਾਂ ਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ US, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ धार्मिक कर्मा तो काम नहीं है जी जी। सो की रिजल्ट रहे यूएस। सर लेट्स स्टार्ट विद द यूएसए जी। यूएसए बहुत कम कंसल्टेंट बोलते होंगे। यूएसए का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट से फाइल लगाते हैं तो। कुछ छोटी सी यूनिकनेस होनी चाहिए कंसल्टेंट में, कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, कुछ हिडन चीज़ें हैं जिसको देख के कंसल्टेंट अगर काम करे तो हाई कमीशन स्टूडेंट को वीज़ा दे सकती है। मैं स्टूडेंट की बात करना चाहूँगा। ये बच्चा अम्बाला से बिलोंग करता है। इसका 12 साल का 10 साल प्लस 10 साल का इसका एक्सपीरियंस है डिफरेंट फॉर्म में। अब सोचिए कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 10 साल पहले इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी होगी। क्वालिफिकेशन MBA कर रखी थी 2012 में, IELTS 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। उसके बाद 12 से लेके टिल डेट 3 फॉर्म में इन्होंने काम किया है नेक्स्ट 10 ईयर के लिए, जिसमें ये एनालिसिस्ट भी रहे, एंटिटी डाटा में भी काम किया इन्होंने, सीनियर एनालिसिस्ट भी रहे हैं। इसके अलावा करंटली ये बैंक ऑफ अमेरिका में एज ए टीम डेवलपर रहे हैं 2017 से। तो इनका हमने वीज़ा लिया MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इवन MBA ऑलरेडी बच्चा था, MBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट इज ए यूनिक कोर्स। तो इस टाइम पे ये काम कर रहे थे बैंक ऑफ अमेरिका में मई 2017 से टिल डेट तक। तो जैन इनटेक 2023 के लिए ही गॉट द वीज़ा। कल इस बच्चे का वीज़ा अप्रूव हुआ था, तो आज आपके यहाँ मैं टी शो पे बैठा था, तो मैंने कहा आज इसकी स्टूडेंट की जरूर बात करनी चाहिए। प्रदीप जी, तुसी गल की, मैं खुद आप 1.5 महीना पहला US एम्बेसी इंटरव्यू करके आया, उस तो 8 महीना पहला करके उदो डैनियल सीगे वीज़ा ऑफिसर। इस बार मार्गरेट मैकलियोड, शायद तुसी देखी भी है, देश प्रदेश की इंटरव्यू हुई है। जी तुसी गल की कि तजर्बा होना चाहिए वीज़ा लैण लई, झूठ फ्रॉड बोल के उत्थे कामयाबी नहीं मिलती। और ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਗੈਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਜੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्टूडेंट, तो ਸਾਨੂੰ स्टूडेंट चाहिए नहीं जी। एम्बेसी यही देखना चाहती है कि बच्चे का अपना एक्सपीरियंस क्या है, बच्चा कितना उसकी मतलब उसने अपने डीप रिसर्च कितने किए हुए हैं। अब इस बच्चे की बात करें, वेबस्टर यूनिवर्सिटी में इसका बच्चे का वीज़ा आया MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके साथ साथ हमने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में और इस बच्चे की I-20 बुक आई थी। दैट्स द रीज़न स्टूडेंट गोट द वीज़ा। और बच्चे से जो क्वेश्चन किए बच्चा उसमें इवन ऑलरेडी बड़ा फ्राटेदार बोल रहा था। बच्चे की डेली हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे थे, और जो क्वेश्चंस एम्बेसी रूटीन में पूछती है उन सब पे हमने बच्चे की बार बार रिहर्सल कराई है, एंड स्टूडेंट गोट द वीज़ा। अब देखिए 10 ईयर का गैप, बट 10 ईयर में बच्चे ने काम किया है, 6.5 बैंड है, ऑलरेडी MBA पास था। मतलब
ही वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। और MBA करने के बाद भी वो दोबारा मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, बट मैं दोबारा उसको MBA में डालता तो शायद उसका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता, बट मैंने उसको यूनिक प्रोग्राम दिया, दैट इज़ MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा यूनिक कोर्स था और MBA वाले बच्चे को ये बहुत सूट करता था, क्योंकि उस बच्चे ने ऑलरेडी 3 सेक्टर में डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया जी। दूसरे बच्चे की बात कर लेते हैं, जसलीन कौर है, और इस बच्चे के 6 बैंड और एक मॉड्यूल में 5 बैंड थे। 6 बैंड एक मॉड्यूल में 5.5। 2021 में 12th कॉमर्स से की इन्होंने 77% मार्क्स से। और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ईस्ट बे, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ईस्ट बे में इस बच्चे का वीज़ा आया है BBA के लिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैन 2023 के लिए। इसका भी कल ही वीज़ा अप्रूव हुआ है जी। नेक्स्ट है मनजिंदर कौर। मनजिंदर कौर ने ऑलरेडी GNM की थी 2014 में, उसके बाद ये स्टाफ नर्स रही 15 से 21 तक, एंड करंटली ये क्या नाम है स्कूल में क्या नाम है वर्किंग एज ए स्कूल नर्स इन लेडी लॉर्ड पब्लिक स्कूल है। और कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी में इस बच्चे का वीज़ा आया बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए जी। तो अगेन जैन इनटेक के लिए 2 बार ये बच्चा कनाडा का रिफ्यूज था। ट्वाइस शी गोट द रिफ्यूजल फ्रॉम द कनाडा एम्बेसी एंड फाइनली शी गोट द वीज़ा फॉर बैचलर ऑफ नर्सिंग इन US। आसदीप सिंह है, 12th की थी, 7 बैंड है, 2 ईयर का इसका एज ए IELTS ट्रेनर का इसका वर्क एक्सपीरियंस था जी। और 2019 में इसकी 12th थी। रोवन यूनिवर्सिटी में इसका जैन 2023 के लिए इस बच्चे का वीज़ा आया है। विभा है, LLM किया था 2021 में, इसके बाद IELTS में 7 बैंड। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी जैन 2023 के लिए इस बच्चे का वीज़ा आया है। रमन शर्मा है, बैचलर की थी बच्चे ने, BBA ऑलरेडी कर रखी थी, 6.5 बैंड थे। MBA के लिए ये बच्चा USA का वीज़ा लिया इस बच्चे ने जी। तो मतलब ये कुछ 6-7 बच्चे थे जिनकी अभी रिसेंटली मतलब 5 to 6 डेज में वीज़े आए। तो ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ और जो ये प्रेजेंट ही ठीक नहीं करते। जो रमन शर्मा का वीज़ा है मैकनिस यूनिवर्सिटी MBA प्रोग्राम के लिए। जी सर, सॉरी जी। प्रदीप जी, US ਤੋਂ ਬਾਅਦ US ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 23 ਤੇ 24 ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਰੁਲ ਗਈਆਂ, ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਨਹੀਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 1-2 ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ पॉजिटिव तरीके नाल डेफिनेटली कंटिन्यू वीज़े आ रहे हैं। मैं एक बच्चे का मतलब जिक्र करना चाहूँगा, योगामल राज सिंह बच्चा है, योगामल राज सिंह। ये बच्चा ट्वाइस कनाडा से रिफ्यूज़ था, तो इस बच्चे ने हमें अप्रोच किया, तो हमने इसको बोला कि भाई अगर आप, क्योंकि हम रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, वी हैव द ऑफिस इन कनाडा, तो क्यों ने आप अगर इमिग्रेशन लॉयर को डालो तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी। स्टूडेंट ने बात मानी, इवन स्टूडेंट ने थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा RCIC के लिए, ठीक है, एंड फाइनली ही गॉट द वीज़ा। मतलब आप बिलीव करना, ये बच्चा तो मतलब इतना खुश है कि इसके धरती पे पैर नहीं है कि ट्वाइस ये बच्चा रिफ्यूज था। अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं, योगामल की, अम्बाला से ये बच्चा है, अगेन 2020 CBSE पास आउट है ये, 12th 2020 में। IELTS में 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 थे। और कॉन्स्टेबल कॉलेज में इस बच्चे का बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में इसका वीज़ा आया जैन इनटेक के लिए। और 2 बार ये रिफ्यूज था, एक दिसंबर 2022 में ये प्रीवियस रिफ्यूज हुआ था, सॉरी ये दिसंबर 1 को ये बच्चा पहले रिफ्यूज हुआ था, उसके बाद इन्होंने, ये रिसीव डेट है, सॉरी रिसीव डेट है दिसंबर 1 2022। तो इस बच्चे का यही से पहले ट्वाइस ये रिफ्यूज था। ये बच्चा हमने स्पेशली बात करी इसके लिए कि भाई आप पे, मैं स्पेशली इस बच्चे से मिला कि भाई तेरा ऑलरेडी 2 बार रिफ्यूज है, पुराने कंसल्टेंट ने क्या क्या तेरे इसमें लगाया है, हमें केप्स नोट निकालने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फाइनली ये बच्चा एग्री हुआ, RCIC की हेल्प ली गई एंड इस बच्चे का वीज़ा निकला। ऐसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यू प्लीज़ या ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਉੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 50% ਸਕਸੈਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, 40 ਰਹਿ ਗਿਆ, 30 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਪਾਊਸ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਈਵਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਈਵਨ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਿਉਂ करनगे स्टूडेंट ਨੂੰ? देखो आपको ही पता है फुल टाइम वर्क अलाउड हो गया बच्चों को, ठीक है, क्योंकि मैन पावर की कमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो जितने भी कंट्री हैं, इनका जो काम करने का तरीका है उसमें
जैसे कोविड आया, कोविड के टाइम पे उन कंट्रीज ने अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया, इवन उस टाइम पे भी कनाडा चल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ एप्लीकेशंस बहुत बढ़ गई। 2020 से वो डेफर होते चले गए, कुछ बच्चों ने प्लान ड्रॉप कर दिए। अब प्लान ड्रॉप कर दिए, फिर कुछ बच्चे पढ़ रहे थे वो ड्रॉप करके आगे दोबारा स्टडी करने के लिए कि चलो अब अब्रॉड चलते हैं। तो दूसरा उन्होंने क्या नाम लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम किया। अब वीज़ा कनाडा एम्बेसी उतना ही दे रही है जितना उनको रिक्वायर्ड है। मान लो उनको 1 लाख बच्चे का वीज़ा देना है, तो 1 लाख, पहले 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख एप्लीकेशन डलती थी, तो उसमें से सक्सेस रेट हमेशा हाई दिखता था आपको कि भाई 1 लाख वीज़ा देना है। अब देना तो मान लो 1 लाख ही है, लेकिन एप्लीकेशन 5 लाख एम्बेसी में। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि कोविड के टाइम पे हर एक बच्चे ने यही थॉट प्रोसेस चलाया कि भाई अब्रॉड जाना चाहिए। और आप बिलीव करना, सुनामी आई है कोविड के बाद, नंबर्स बड़े हैं, लेकिन उनको तो रिक्वायरमेंट जो है वो है, तो उसके बाद जो बचेंगे तो रिफ्यूजल्स तो देंगे, बट स्टिल अच्छी एप्लीकेशंस का वो वीज़ा दे रहे हैं। ये मैं एक स्टूडेंट की ओर बात करूंगा, रवदीप कौर है। ये बच्चा भी ट्वाइस कनाडा से रिफ्यूज था, अगेन RCIC की हेल्प ली गई, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट की। क्वालिफिकेशन इसकी थी डिप्लोमा बिजनेस कर रखा था, और इसके बाद इसका 6.5 बैंड नॉलेज देन 6.5 इसका था, और 2020 से 2022 तक इसने कोऑर्डिनेटर है बिजनेस डेवलपमेंट, और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इस बच्चे की फाइल लगाई यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में, एंड इस बच्चे का वीज़ा लगा है जैन 2023 के लिए। तो मतलब मैं रिकमेंड करूंगा जो बच्चे ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं वो भी वीज़ा ले सकते हैं। लोकल कंसल्टेंट से फाइल लगा रहे हो, लगाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई आपके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है, अगर आप RCIC मेंबर की हेल्प लेते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज RCIC मेंबर है। वी हैव द 2 ऑफिस इन कनाडा, और 18 साल का एक्सपीरियंस भी हमारा, डायरेक्ट टाइप्स हैं, क्वालिफाइड हैं हम हर एक फील्ड में। और जितनी आप बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ भागते हो ना, बहुत सारा क्लाइंट बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ भागते हैं, नाम किसी का लिया नहीं जा सकता, उसके ओनर नहीं मिलते कभी भी। सर जो भी काम करना होता है स्टाफ ने करना होता है। ऐसी रिफ्यूजल्स आती हैं बच्चों की कि जिनके वीजे आ सकते हैं, किस बात पे कि फाइल अच्छे तरीके से नहीं बनी, SOP अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हुई, डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हुए, कोर्स सिलेक्शन अच्छी तरीके से नहीं दिया। ऐसा हो रहा है आज की डेट में। सर ये हालात ने जो कुछ समा पहला पेट्रोल पंप 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਓਨਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਨਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਨਰ ਅਖਬਾਰ, TV, ਰੇਡੀਓ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ काम है, रिस्क वाला काम। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ कि मैं पर्दे पीछे बैठे हैं, रिमोट घुमा रहे हैं। सही बात है। एक बच्चे की और बात करते हैं, करण राणा है, साढ़े बैचलर इंजीनियरिंग की बच्चे ने, एक बार ये कनाडा से रिफ्यूज़ हुआ, अगेन इसको हमने रिकमेंड किया कि RCIC की हेल्प लीजिए। 7.5 बैंड नॉलेज देन 6, और लैम्पटन कॉलेज में एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक लीडरशिप में जैन 2023 के लिए इस बच्चे का वीज़ा आया है। तो RCIC की तरफ से आप फाइल लगाते हो तो हाई पॉसिबिलिटी है। देखो 2 टाइप के कंसल्टेंट होते हैं, एक लोकल कंसल्टेंट, एक RCIC। जैसे हम इंडिया में हम 2 कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इंडिया में तो कोई इमिग्रेशन का लॉ है ही नहीं, ठीक है, कि भाई आप 10वीं फेल हो तब भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओ और अपना डायरेक्ट टाइप से वेल एंड गुड है। नहीं है तो ABCD से कंसल्टेंट से, मास्टर एजेंट से, दिल्ली से ले लो, चंडीगढ़ से ले लो, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जो RCIC हैं, पहली बात तो वो कैनेडियन सिटीजन हैं, दूसरा फिर उन्होंने इमिग्रेशन का डिप्लोमा या बैचलर की होती है, उसके बाद उन्होंने अपना CIC से, कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट जो वार्डिंग बॉडी है, उसका टेस्ट देना होता है, IELTS में 7 बैंड देने होते हैं, तब वो कंसल्टेंट लाइसेंस देखते हैं। तुसी कुछ फॉर्मेलिटी कर दो, लाइसेंस देखते हैं। जी, और उसके लिए उन्होंने पढ़ाया है कि कनाडा में अगर आप इमिग्रेंट का काम करना चाहते हैं, इमिग्रेशन का काम करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द रूल एंड रेगुलेशन। तो जो CIC के, जो मतलब RCIC के थ्रू फाइल लगती है, आप बिलीव करना
हाई कमीशन उसको पॉजिटिव वे में देखता है और वो उसके जीसीकी पे लगता है। जितने भी स्टूडेंट की फाइल लगती हैं इंडिया में, फाइल लगती है, मैक्सिमम कंसल्टेंट स्टूडेंट के बिहाफ पे लगाते थे, उसके जीआईसी पे लगाते हैं। लेकिन जो आरसीआईसी के थ्रू लगता है तो आरसीआईसी का जीसीकी पे लगता है, मतलब उसके पोर्टल पे लगता है। तो हाई कमीशन, जी हाई कमीशन उसको रिफ्यूजल अगर देना भी है ना तो 10 बार उसको पहले चेक करती है, लेकिन स्टूडेंट के बिहाफ पे लगती है तो स्टेट फॉरवर्ड उड़ा देती है। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ द आरसीआईसी मेंबर। सर समा थोड़ा यूके बारे अपडेट कर दो स्टूडेंट्स में। देखो जी, यूके में जैन 2023 बहुत अच्छा भी नहीं रहा और बहुत अच्छा भी रहा। अप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैं कल मिल के आया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड से दिल्ली में, 5000 एप्लीकेशन थी उनके पास और 218 केस दिए। वेस्टर्न ओवरसीज इज द ओनली वन कंसल्टेंट जिसका के पास नॉर्थ इंडिया में टाइप्स है, मतलब हरियाणा पंजाब में तो मैं अकेला ही बैठा हूँ जिसके पास यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है। तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि 218 उन्होंने केस दिए, 5000 एप्लीकेशंस कही हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन बहुत हुई है कि एक बच्चे ने 10-10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है। दूसरा देखा जाए पीछे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का जैसे जैसे रुख चले हैं वैसे वैसे बच्चा यूके की तरफ भागा है। अब मई इनटेक है, मई के बाद सितंबर इनटेक है। मई और सितंबर इनटेक बहुत अच्छा रहेगा और इवन के यहाँ सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जिस बच्चे का कैश आ गया उसका वीज़ा आएगा। और कीप इन माइंड आज की डेट में यूके एम्बेसी भी इंटरव्यू ले रही है। मेरे 2 बच्चों के इंटरव्यू आए, दोनों बच्चों के वीजे निकले हैं। सर ਜਿਹੜੀ यूके एम्बेसी इंटरव्यू ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ स्टूडेंट ਦੀ जेनेटिक। देखो नॉर्थ इंडिया हमेशा आपको पता है कि भाई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के लिए जाना जाता है जी। तो डॉक्यूमेंट उनको रैंडमली वो चेक करते हैं जी कि भाई कोई गलत तो नहीं है। जैसे एक नीलकंठ था, सोनीपत का स्टूडेंट था, उसका इंटरव्यू आया कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में, वो एमबीए हेल्थ के लिए जा रहा है जी। उसका इंटरव्यू हुआ, फाइनली नेक्स्ट डे उसका वीजा अप्रूव होकर आ गया। वो देखना चाहते हैं कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि जो आईएलटीएस या पीटी का स्कोर लगाया बच्चे ने क्या रियली वो कैपेबल स्टूडेंट है या नहीं है। वो देखना चाहते हैं क्या फंडिंग है वो जेन्युइन है या नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है, उसका आउटकम क्या होगा। बच्चा इस तरीके से जी जी क्योंकि एफडीओडी करा रहे हैं एजेंट जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट देखने के लिए वो हमेशा मतलब इस टाइप के इंटरव्यूज लेते हैं। और जो बच्चा गलत कर रहा होगा नेचुरल सी बात है वो इंटरव्यू में फड़ा जाता है। तो अगेन आप वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं यूके के लिए। वी आर ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट, वी हैव द डायरेक्ट टाई अप विद द यूनिवर्सिटीज। और सर यकीन मानना इतना हार्डवर्क किया है, मैं मानता हूं कि सेल करना बड़ी बात नहीं है। आप मतलब इनरोल तो कर लोगे बच्चों को, बच्चों को एंड तक कैसे लेके जाएं। नॉर्थ इंडिया में बिजनेस करना बहुत टफ हो रहा है आने वाले टाइम में। आप बिलीव करना सर, मैंने 34 में अपना बैक एंड ऑफिस बनाया इसी चीज़ के लिए, जिसमें 70-80 एम्प्लॉइज इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। यूके की टीम अलग बैठी है, ठीक है, एसओपी में हेल्प करने वाली टीम अलग बैठी है। जो बच्चे एसओपी लेके आते हैं उसमें रेक्टिफिकेशन कराने वाली, इंटरव्यू प्रिपरेशन वाली टीम अलग बैठी है, एडमिशन की टीम अलग है, फाइलिंग की टीम अलग है, चाहे वो यूके है, चाहे यूएस है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको अच्छी तरीके से सर्विसेज दी जाए ताकि जो स्टूडेंट है अब्रॉड जाना चाहता है उसका सपना पूरा हो। जी प्रदीप जी, गल्लां तो करन दी काफ़ी सारियां सीगियां, समा नहीं है पर मैं 10 सेकंड जरूर लाना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया बारे थोड़ा जिहा दस 10 सेकंड। सर ऑस्ट्रेलिया अगेन पॉजिटिव है जी। बीइंग एरी मेंबर मैं कह सकता हूँ कि भी सक्सेस रेट हमारा बहुत हाई है। आप यहाँ पे अगर वेट में जा रहे हैं तो वेट में भी वीज़ा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है टेप की तरफ। अदरवाइज बैचलर और मास्टर्स के लिए आप जरूर जाएं, ठीक है। रिलेवेंसी मैटर करती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ कि बच्चा यहाँ से जाता तो जरूर है लेकिन वहाँ पे पढ़ता नहीं है, कॉलेज चेंज कर लेता है, तो वो थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरीके से आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना है, जीटी आपका मैच होना चाहिए, आपके पास फंड जेन्युइन होने चाहिए। और फंड पे आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो कहते हैं कि जेन्युइन असेसिबल फंड्स हो। जेन्युइन असेसिबल का मतलब है कि आपके पास फंड का फ्लो भी होना चाहिए। आज की डेट में नॉर्थ इंडियन क्या करते हैं, कैश तो कह सकते हैं, इधर उधर से फड़ेंगे, अकाउंट में 30 लाख डिपॉजिट कर देंगे, ना उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन ना उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों की एसओपी खुद बच्चे रिसर्च नहीं करते, एजेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। 3-4 चीज़ें जिन बच्चों ने कर ली उसका वीज़ा आएगा ही आएगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਵਰਾ ਚੱਲਿਆ 22 ਦਾ 23 ਦੀ ਦਸਤਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।